Hello, everyone. Welcome to another exciting episode of Tap the Artist podcast. Today, our guest is Smita Taneja, a professionally trained dancer and the founder of PDA Professional Dance Attire. Hello, Smita. Welcome to Tap. Hi Swati. How are you? I'm good, very good. And thank you so much for coming here. Absolutely, it's my pleasure. Okay, so to begin with, our very favorite question that we love to know about people, we love to know about artists. Who is Smita Taneja without her art, without PDA in your Oh case? wow, we're diving right into that. Um, Smita Taneja is, I say, jugadu, very, which I think all entrepreneurs need to be at Yes, the end of the actually. day. Um, and just somebody who likes to make things happen. I like the idea of going out there and just figuring it out. I don't mind hearing no. I don't mind looking like an idiot in front of people. All of which I think is important to be an entrepreneur. So yeah, that's a little bit about me. Other than that, I'm not currently a dancer. I used to be, which was 12 years ago now. Oh, wow. Yeah, I haven't. Of course, I dance now also. I mean, who can leave it? एक बारी शुरू कर दो, then बिल्कुल, it बिल्कुल. becomes your life, no? Like, right. But professionally, I haven't done that in 12 years because PDA took over, and that Yeah. was always the idea Hmm. that I wanted to do this. So, yeah, that's I guess. So, Me? so like as you said, that was the idea since the beginning. Like since the Yeah. beginning, you knew that this is what you want to do. Yeah, I was a fashion student. That's Okay. what I graduated in, and I would take I would take dance classes after college. After college. And I remember, I remember quite vividly. There was a Russian ballet instructor at DanceWorks, whose class he would the instructor would select that okay आप इनकी class कर सकते हो. His name was Gabor. I remember one of the few first Russian ballet instructors that came to India, and I was maybe 2 minutes late for the class, and he came outside the class. So windows होती है ना, so you can see who's outside also. He came outside the class and he said, "You can't enter. You're late," which was very respectable. Of course, I'm late. मेरी गलती है. उसको क्या पता college से late हो गए, ठीक है. But then he said, "You're not even in the right attire," and I was in a ganji and leggings, which is what we were told is the right attire. But he was very specific. He said leotard, Okay. and I knew what a leotard is being a fashion student, but I did not know where do you get them from. So then I started asking. Half of the company there did not know where to get it from. There was one store in Khan Market, Yes. Zingrin, if you Zingrin. remember, Yes. जिसके पास 2 डिज़ाइन होते थे. We दो all have colours those में. designs. Everybody had Yes. those. And at that time it used to be this at what 16 years ago. Yes. It used to be 2,500 or something, no? Which was shit expensive. Leotard are cheaper than that even today, because वो आता है इतनी दूर से है because it's imported, and it was really poor quality. And for a fashion student जो अभी 4th year में अपनी finishes पे काम कर रहा है, उसे पता था that the quality is not that great. So that day I decided कि I will only wear a leotard now जब खुद बनाएंगे. So that is where the thought happened, and so a few of the seniors in DanceWorks approached कि आप you be a part of the company. So I thought best place to do your research, what a dancer requires, what all you need in a leotard was the first thought, because I thought वही नहीं है, बाकी सब मिल जाता है. So I thought great place to do your research. So I made a lot of friends. I was there in the company for 5-6 years, which is longer than research. I also stayed because the people were lovely. My experiences, I had the best time being a dancer. My professional journey as a dancer was absolutely blissful. I had the best years. So वो delay हो गया थोड़ा PDA. But then I think it started at the right time when it had to. Yeah, exactly. Yeah. Things happen when they are supposed to happen. Yeah. Like that. Yeah. Oh, so it's so nice. Very interesting, actually.
So, what was your inspiration, or who was your inspiration behind this? Have you seen, you've of course seen So You Think You Can Dance? Yes. मुझे समझ ही नहीं आता था वो ऑडिशन में जो कपड़े पहनते हैं कहाँ से आते हैं. We did not have that. There was no person as inspiration. I've had business mentors and people that I look up to. I mean, Ashley was one of those people, I think. Yeah. You know, one of those minds. But when it came to the product and the company, there was no inspiration as such. There was always, वो क्यों नहीं है? या फिर if I want to get that, मेरे नहीं है चाचा मामा ताई मासी जो US से लेके आएंगे मेरे लिए. I don't have that. Did not have an access to a credit card. How do you place that order? It came purely from a need basis where I realized there are more people who need it. So that was the inspiration that I think this can be a market, and looking at So You Think You Can Dance, that these clothes need to be available here, and we manufacture everything. Yeah, being in India, I mean, I come from a manufacturing background. So I knew, and I love the idea of manufacturing. I just love everything factory. मुझे पान मसाले की भी factory में ले जाओ, मुझे बड़े मजे आएंगे. So I knew that it should be manufactured here. We are good at doing it. So why not? That's pretty much बहुत simple सी बात है कि था नहीं. और जैसे Shri just said that this podcast was created because people were not talking about what he wants to talk about. Right. He wants to talk about artists, their journey. Artists. Yes. People who are connected to the industry, and there are no podcasts to talk about it, so he created it. So the idea was just that simple. है नहीं और चाहिए. Very nice. So, what was your journey like? ये PDA की journey कैसी रही, क्या रही? आइडिया कहाँ से आया ये तो समझ आया कि there was this need and want कि होना चाहिए, तो ये इनिशिएट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं. पर ये जर्नी कैसी रही? बहुत फन. It was absolutely insane. मुझे हर लेवल पे इतने मज़े आए हैं क्रिएट करते हुए, और अभी भी हर लेवल पे मज़े आते हैं. आई थिंक प्राइमरी रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बता दिया. प्रोडक्ट रिसर्च वॉज ड्यूरिंग डांसिंग ओनली कि ये चाहिए. Something as basic as all our products, leotards, have chest pockets जिसमें आप pads डाल सकते हैं. Now the leotards that used to come from US and Europe, उनमें नहीं है because women they are a lot more chill. They are okay with it. इतना फर्क नहीं पड़ता उन्हें. Also they're physically built different. Yes. A Russian ballerina is physically built different than a Indian dancer. Yes. So we require that padding. So I saw dancers put safety pin. This is not an exaggeration. In fact, a very close friend used to do it. If she ends up watching this, she will know I'm talking about her. She put safety pin to hold the cups together. क्योंकि अगर उन्हें stitch कर दोगे तो फिर वो उसी के साथ रह जाएंगे ना. फिर एक और pair चाहिए. बिल्कुल. So she would pin it in. So the initial research was कि अच्छा okay, if you're making it for Indian bodies तो ये भी चाहिए. So you need chest pockets. वरना नहीं आते हैं. अभी भी international बहुत कम pieces में बस लाइनिंग आती है. सो माई रिसर्च पार्ट वॉज डांस करते करते मस्ती करते करते हो गया. देन केम व्हेन आई स्टॉप डांसिंग एंड जस्ट आवर्स फ्री, जस्ट आवर्स. सुबह 7 बजे से लेकर वी वुड डांस टिल like 10 PM एंड आई हैड ऑल दैट फ्री टाइम. ऑल आई डिड वाज कोल्ड कॉल्स हर एक स्टूडियो को थ्रू द कंट्री. मुझे पता भी नहीं है मैंने कितने कॉल्स करे होंगे जस्ट टू फिगर आउट डांसर्स कितने हैं आपके स्टूडियो में, कितने डांसर्स हैं. क्योंकि सिर्फ डांस वर्क्स और SDIP नहीं है, बहुत सारे एग्जैक्टली स्टूडियोज़ हैं. और उसमें मतलब मजाक की भी बात नहीं है, उस टाइम पे डांस वर्क्स में शायद 800 स्टूडेंट होते थे. और अगर मैं बॉम्बे कॉल कर दूँ, एक रेगुलर जिसका नाम ही नहीं सुना होगा उसके पास भी 800 स्टूडेंट्स. बिल्कुल. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. तो कोल्ड कॉल्स यूज्ड टू टेक अप मोस्ट ऑफ द टाइम, जस्ट पिकिंग अप द फोन एंड टॉकिंग टू पीपल कि आप बताओ आपको क्या चाहिए. टी शर्ट से नहीं ऊपर उठते थे तो लोग, टी शर्ट चाहिए, हमारा लोगो लगा दो उस पर. दैट वाज, वो हमने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे. अभी नहीं कर रहे हो वो? मैंने वो कभी नहीं करा. आई वाज लाइक अगर आपको यहाँ पे टी शर्ट चाहिए तो आपको कोई फंकी सी टी शर्ट मिलेगी, आपको प्लेन टी शर्ट नहीं मिलेगी. सो आई वुड जस्ट से नो. मैं ज़बरदस्ती आर्म कट एंड एवरीथिंग वी वुड डू. सो तो देन केम डाउन टू द मैन्युफैक्चरिंग बिट which I thought बड़ी smartly, जो अभी भी लोग करते हैं. I will go to a factory and I will say आप ये बना दो.
कोई 5,000 पीस से कम में बात ही नहीं करता था. You have to get that big quantity made. So I thought खुद ही manufacture करना पड़ेगा. So we started manufacturing on our own, and then we got into doing costumes, which was not the original idea. But another very close mentor, friend, instructor, Himanshu Sharma, who convinced me कि नहीं तू costumes कर. तो फिर then from scratch I learned about that again, which was great because costumes is a huge part of our business now. So he convinced me for that. उसने मुझे उस टाइम पे भी So You Think You Can Dance का एग्जाम्पल दिया था because I spoke to him about that. He said वो तो जो ऑडिशन में आता है वो तो तू बना रही है, जो स्टेज पे वो कौन बनाएगा, वो भी तो कोई नहीं बनाता. I said fuck yeah, सही कह रहे हैं, वो भी तो कोई नहीं बनाता. Yeah, so we started making that then. So my journey, most of it has been to go to places जहाँ पे लोगों को लगता था what is this little बच्चा doing here, इसको कुछ नहीं आता, इसको हटाओ, और वहाँ पे उनको बस पकड़ के बिठा के नहीं आप मुझे समझाओ. So even when it came down to creating a website, it was that. When it came down to creating your own bank account, बैंक में जाके I would just sit, I'd be like नहीं, you explain to me from scratch. I made the banker guy download the app in my phone and tell me how do you go about just an app also. So और लोग मना भी नहीं करते थे. हो सकता है घर जाके बोलते हो कि कोई बेवकूफ़ पागल औरत पर्दे के पीछे, बट दे वुड हेल्प मी आउट. बट अपने काम के लिए इतना पागलपन तो बनता है यार. आई डोंट केयर. एग्जैक्टली, ये एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है. इफ यू थिंक आई एम लाइक, इफ समबडी थॉट दैट आई एम स्टूपिड कि इसको कुछ आता जाता है नहीं, बट उन्होंने कभी मना नहीं करा. वो भी तो अपनी दिहाड़ी पे हैं. That's what, and that also means you were convincing enough. I would not give you an option. That's fine. I would not give them an option. I went to delivery because delivery नहीं समझ में आ रही थी next कि delivery कैसे करते हैं. So I went to, उनकी board meeting चल रही थी, and it was a very new company at the time, and I just went to the board meeting. सारे founder, CEO सब बैठे हैं, and I'm like dashboard क्या होता है, समझाओ. And they sat down, 4 people who probably earn in lakhs sat down and explained a 25-year-old कि dashboard कैसे बनाते हैं, and they were nice enough to do it. तो मना आज तक किसी ने नहीं करा. एटलीस्ट मुझे याद नहीं है करा भी होगा तो मैंने फिर कोई और ढूंढ लिया जो हाँ बोल देते थे. तो while you were doing all of this, ये वाली जर्नी में, so you were doing it all alone or you had somebody with you, like some partner? No, I don't friends? have a partner. Oh, friends have always been there. Friends were guinea pigs, na? Models. Yeah. All samples have been tried, tested on friends, approved, disapproved by friends, shot on friends. Yeah, everything. But doing it alone is a ऐसे बड़ा lonely word. There were people, but the structure bit was I was doing it. हाँ, वो अभी भी I do it. Oh, very nice, very nice. Yeah. So, were there any challenges? I'm sure कुछ तो रहे होंगे, किसी टाइप के तो रहे होंगे. यार I faced. I'm sure, but I don't remember them as challenges. पता नहीं. They were some weird sort of an experience or the other, that something other वही than जाना है, that वही challenges. cool came out. Cracking through Bombay studios was a big challenge. उसमें भी मतलब I have gone to studios like Nitya Shakti. It's a little difficult to crack. Terrence was very difficult to crack, although now we've done costumes for all of them. But वो जाके बैठ जाओ वहाँ पे, or they are not ready to look at your iPad to, they would not want to see your work. They don't want, they're like नहीं करना हमें or whatever. So that was a little difficult because I knew people in Delhi because I was a part of Danceworks. So mostly सारे dancers को जानते थे. And but Bombay was a little difficult, but I'm glad that worked out. Again, a lot of business comes from there. And figuring out how to make a tutu. Oh, that took such a long time. It's such a technical process. I ended up doing a course that is provided by a Russian factory. It's a 30-40 हज़ार का course online on how to make a tutu. Oh wow! And there was nobody again making tutus. And the ballet industry was growing, so I knew performances will also साथ grow. So I'm like ये तो सीखना पड़ेगा. And there are multiple ways on how to do that also. That was a टेक्निकल चैलेंज वाज दैट, जिसमें जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं जाके बस बोलती थी मुझे सिखा दो, कोई सिखाने वाला भी नहीं था. Exactly. There was nobody who even knew how to do it. To
have me sit them down and be like, सिखाओ. So टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे कम है. एंड अदर, अब आप चैलेंज बोल रहे हो तो वो तो आराम से मान गए थे, बट चैलेंज ही था डांसर्स और कोरियोग्राफर्स को टी शर्ट और गंजी में बच्चों को और डांसर्स को स्टेज पे भेजने से रोकना. आई डोंट नो, देयर वुड बी सच प्रोलिफिक कोरियोग्राफर्स जो महीनों से काम कर रहे होते हैं अपनी कोरियोग्राफी पे और कॉस्ट्यूम के बारे में 2 दिन पहले सोचते हैं. Yes, I completely agree. And that happens a lot. To explain to them that, you know, you have to think about this, if not more, then as much detail as your Thinking about music. the piece and yes. Costume should start at conception. जिस मिनट आपका म्यूजिक और कोरियोग्राफी का आइडिया है, कॉन्सेप्ट आया है, that's when you have to think about the costume as well. That तो अभी भी people who've worked with us used to come to us. हमारा 15 नवंबर का शो है, 7 नवंबर को आते थे. Now we start working them on 15th September. Now they have realized that the more time we give this, क्योंकि सोचना तो है ही ना कॉस्ट्यूम के बारे में, अभी नहीं तो पहले सोच लो. How does it make a difference? So now they have, you know, एक लत लग जाती है ना. Now they know that, okay, I don't want my students or my company members or my dancers to go on stage without a perfect costume. Now they have gotten the taste of that. Now they also want it. Which is like so important because It was costume not is such a considered. but costume is such an integral part of the performance as well. It changes a lot. It changes a lot of things. The meaning altogether. I The would say. meaning altogether. Yes. That is so well Yes. put. It's the a costume is the only tangible part of the choreography. बाकी सब कुछ is intangible and fleeting. Everything. Your music, you can't touch it. Like tactile नहीं है. True. Costume एक वही चीज़ है जो music, lighting, thought, choreography सबको एक connect करता है एक visible और touchable चीज़ से. वो knowledge और वो उसके लिए कन्विंस ही करना was so difficult. कॉस्ट्यूम का बजट बढ़ाना was difficult. First few years तो I did जितना मुझे पैसे मिलते थे उतने का ही कॉस्ट्यूम बना के, like no profit whatsoever, just to get people the idea that you should spend money on it, it is going to be worth it. फिर धीरे धीरे करके I'm like, okay, no, let's like push the budget a little bit if I have to survive. If I have to make money only then will I survive. तो थोड़ा खींचो. They were ready. Again, same companies who would pay X amount for a costume, now they pay 2x because they see the value in it. The parents see the value in it if you're paying for your child. The dancer sees the value in it कि अगर मुझे एक शो कहीं पे पिच करना है तो if my costume is strong, be it television, be it live performance, मैं pitch better कर पाऊँगा उस कर पाऊँगा या कर पाऊँगी उस particular piece को if my costume is strong. So that attention to detail has now started. Which is so nice. I mean, ठीक है, मतलब it's better to be late than never वाला सीन है. अभी भी चल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, I'm sure. अभी भी चल रहा है. There are I did I did company costumes for Meher Malik for Banjara Dance Studios. So she maybe heard me talk about this passionately or whatever. She held a workshop for costume education. She's like, you please take it, you host it, and all her instructors were there, her students were there, and they understood that if we work on this from scratch, then you know our piece is elevated multiple folds. There are things like अगर आप एक बॉथमान कर रहे हो, ठीक है, आपने किक करा, what kind of a look do you want? ठीक है, straight पैर turned out सब कुछ चाहिए, ठीक है, but if do you want the kick to fall back and the fabric to fall back heavy with the kick? Do you want the fabric, there is a certain, that is one type of a fabric, then there's a second type of a fabric where once you kick, the fabric will hover in the air for half a second and then come down. And then there is another fabric which is called glass chiffon. When you kick, the fabric wraps your leg and moves with your leg. तो silhouette भी दिख रहा है. Your line is also really clean showing, which is used in romantic ballet pieces mostly. आप वो detail छोड़ रहे हो.
people would come with the brief, lines दिखनी चाहिए. अब इसका मतलब नंगी टांगे थोड़ी होता है, सिर्फ lines दिखनी चाहिए. There are multiple ways of showcasing your lines also. So what is that visual value that you want your piece to have? वो स्टोरी टेलिंग ही चेंज हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. बड़ी क्लैरिटी होना भी, आई मीन सो ट्रू. वो मेरे को लगता है कि किसी, अगर आप डिज़ाइनर के साथ बैठ रहे हो, अगेन जब आप एक म्यूज़िक चाह रहे होते हो, सो यू सिट विद अ कंपोजर और आप उसको बताते हो कि व्हाट आर योर वांट्स एंड देन अकॉर्डिंगली यू गेट द पीस डन, पीस मेड अपने प्रोडक्शन का. सिमिलरली मतलब राइट कि लाइंस चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इफ यू सेट विद यू कैन ऑल्सो टेल कि लाइंस ऐसे भी दिख सकती हैं और ऐसे भी दिख सकती हैं. सो इवन इफ आई डू नॉट हैव, मे बी मैंने नहीं सोचा है कि अच्छा ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट आ सकता है, विद योर एक्सपर्टीज आई कैन ऑल्सो गेट टू नो ओके दिस इज द डिफरेंस. तो मैं जो अभी तक सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही सोच रही थी, नाउ द फ्लेयर माइट गिव अ बेटर लुक. फ्लेयर जो उसका फ्लो है, कलर स्टोरी, ब्लैक में मैंने 10 साल सुना है. क्या चाहिए, व्हाट इज द कॉस्ट्यूम कलर, एंड एवरीवन वुड टॉक लाइक वो सबसे यूनिक आइडिया लेके आ रहे हैं. ब्लैक. मैंने मना भी करा ब्लैक कॉस्ट्यूम्स के लिए, मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे सबसे सस्ता पड़ता है ब्लैक. ओके, बिकॉज आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आई हैव धागे, आई हैव फैब्रिक, राइट. पर I'm like मेरे को नहीं बनाना है. देयर इज लाइक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स प्लीज, जस्ट स्टॉप विद द काले कपड़े प्लीज. तो देयर इज जस्ट, आई थिंक द कोरियोग्राफर्स वर ऑल्सो फोर्स्ड टू थिंक, जैसे आप कह रहे हो ना, वो नॉलेज उनको भी तो इकट्ठी करनी है. बिल्कुल. अब देयर आई एम कमिंग बैक टू सर्विल थिंकिंग एंड डांस, बट एक मिया माइकल्स का पीस है, केला एंड किमोनो का शायद, which was addiction. Yeah, you remember that piece? Yes, I remember that piece. Yes. Ab the guy who's playing the drug, he's in a suit because ultimately business hai. Yes. And the woman who's playing the addict, she's in like these rags, फटे हुए कपड़े. आपको लगता है मिया माइकल तो डिस्कस नहीं करा होगा कि उसे क्या लुक चाहिए? बिल्कुल. So अब वो सिर्फ ये थोड़ी बोलेगी मुझे कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस के लिए लुक चाहिए. That does, you have to involve the, and not just the costume designer, the lighting artist, the music director. If you're creating your own music, you have to involve everybody in the process to create a tight product. So true. Including your dancers. In fact, dancers का काम बाद में आता है. Actually, that's how the productions are supposed to be made. They are made like that only. But मैं बता रही हूँ. At least in like the bigger productions also, costume thought is the last. Yeah, I agree. Used to be at least. Agree. Used to be. The things are changing now. The things are changing now, but अभी भी ऐसी situations आ जाती है. ऐसी situation में choreographers भी land कर ही जाते हैं जब एकदम last minute वाला चीज़ हो जाता है. Yeah. मतलब मैं दूर कहीं नहीं जाऊँगी. Even with us, हम लोगों ने जब initially शुरू किया था, so we also, but we realized it soon. I would say that. Yeah. क्योंकि हम सब बना रहे हैं, आपने सब सोच लिया, कंसेप्ट इतना अच्छा सोच लिया, म्यूजिक पे भी काम कर लिया, हमने पीस भी रेडी कर दिया. फिर बारी आती थी कॉस्ट्यूम की. लाइक वी बारी फिर आती थी. हाँ, कॉस्ट्यूम वही तो फिर आती थी. और फिर दैट्स व्हेन हुआ, ये कुछ टाइम हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ. एंड वी रियलाइज कि हम हमेशा लास्ट मिनट पे क्यों रह जाता है हमारा कॉस्ट्यूम. और फिर क्योंकि वो लास्ट मिनट पे रह जाता है, देन तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है. Exactly. फिर आप वही मिलेगा आपको जो इजीली अवेलेबल होगा या इजीली बन सकता है. या तो वो हमको फील होने लगा कि ये तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है. इस हिसाब से सोचा क्या था, माइंड में इमेज क्या है, लेकिन जो बन कर आ रहा है वो वैसा नहीं है. नाउ वी कैन नॉट इवन ब्लेम एनीबडी. देन आपने टाइम ही कितना दिया, हमने टाइम ही कितना दिया है, किसी को टाइम भी नहीं दिया. दैट्स व्हेन एटलीस्ट नाउ वी ट्राई. I would say this. Now we try कि जब आप इनिशियल लेवल पे ही जब आप अपना कंसेप्ट सोच रहे हो, साथ के साथ आप अपना कॉस्ट्यूम भी माइंड में रखो. See now, as a choreographer or somebody who's running their own company, it's very easy to put एक दो चीज़ें बाद में कर लेंगे, procrastinated. But to be a good business person, सारे पैरेलल एक साथ चलते हैं. सॉरी अगर आपको रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही है, तो आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही है, वो सारी इंपॉर्टेंट है. योर शो इज नॉट गोना बी अप टू पार इफ यू अनलेस यू टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. राइट. एंड कॉस्ट्यूम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. मुझे नहीं पता कि ये कल्चर में क्यों है, एटलीस्ट यहाँ पे, वेयर कॉस्ट्यूम इज़ कंसिडर्ड द लास्ट थिंग.
बट चेंज तो कर देंगे, काफ़ी कर दिया, और करेंगे थोड़ा. हाँ, चेंज तो होना भी चाहिए. Yeah. और you're right, it is changing. Yeah. We have also seen this shift, we have Yeah. also seen this change. और वो difference पता चलता है. There are productions like our company, only the company from we guys are trained from, Satya, and जो actual में जो main productions होती हैं good 50 minutes to 1 hour के productions जो होते हैं, उसमें टाइम भी लगता है बनने में. It takes months to be made, क्योंकि Yeah. आप पूरा उस पर काम करते हो, पूरा प्रोसेस होता है उसका, मूवमेंट प्रोसेस, कोरियोग्राफी प्रोसेस, कंसेप्ट प्रोसेस, एवरीथिंग. सो वैसे सब में दे ऑब्वियसली उसमें एवरीबडी इज इन्वॉल्व, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी इन्वॉल्व होता है. हम अपने ड्राफ्ट्स के अपने पीस के ड्राफ्ट्स के भी शोकेस करते थे, सो दैट द कॉस्ट्यूम पर्सन आल्सो गेट्स टू नो, अच्छा मूवमेंट वोकैबुलरी कुछ ऐसे जा रही है तो कुछ ऐसा अच्छा लगेगा. देन दे सजेस्ट दिस कि आप लाइक वी कैन गो विद समथिंग लाइक दैट. एग्जैक्टली. तो एक आइडिया आपका है, लेकिन द डिजाइनर ही और शी वो जो एड ऑन करते हैं उसकी बात अलग होती है. तो ये आप बात कर रहे हो प्रोफेशनल प्रोडक्शंस की. पैसे आपको भी उतने ही लगेंगे, चाहे आप 3 महीने पहले शुरू करो या फिर 10 दिन पहले शुरू करो. इनफैक्ट यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी अगर आप 10 दिन पहले शुरू करोगे. बिल्कुल. तो कर लो ना फिर इन्वॉल्व शुरू से. व्हाट्स द प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल. द प्रॉब्लम इज द प्रोक्रेस्टिनेशन, कि इसको छोड़ सकते हैं. तो वो अब नाउ दैट इम्पोर्टेंट इज एज यू सेड कमिंग, ये नहीं छोड़ सकते. दिस इज अ पैरेलल दैट यू हैव टू कीप. इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड एज आई सेड इट टाइज एवरीथिंग टुगेदर. तो हम चैलेंजेस की आई थिंक बात कर रहे थे. ये ऑनगोइंग पेरिनियल चैलेंज है ही अभी भी. बट इट्स सो नाइस टू नो, बिकॉज ऑब्वियसली इतने हद तक तो मुझे नहीं पता था. ऑल आई न्यू वाज स्मिता ओके, शी इज़ द फाउंडर क्रिएटिव हेड ऑफ PDA, और थोड़ा वेबसाइट पे काम देखते थे. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. और फिर इवेंचुअली आई ऑल्सो रियलाइज, मेरे को पहले पता था कि लियोटार्ड्स आर द मेन फोटे आपका. फोटे वही है, ठीक है, और वो बहुत अमेजिंग निकल कर आ रहे हैं. वी यूज्ड टू सी इट एंड ऑल, वेरी इंटरेस्टिंग. देन कहीं फिर देखा कि यू आर ऑल्सो गेटिंग इनटू द कॉस्ट्यूम थिंग, कुछ कॉस्ट्यूम वाला चीज़ें. एंड देन अगेन वही, क्योंकि आप देख रहे हैं डांस पीसेस देख रहे हैं, प्रोडक्शंस देख रहे हैं लोगों की, देन फिर पता चलता था अच्छा कि कॉस्ट्यूम्स भी बन रहे हैं. सो विच इज़ सो नाइस. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यू हैव टेकन दैट पेन. आई वुड जस्ट से दैट एवरीबडी डज नॉट टेक दैट पेन. पेन एज इन कि चलो एक चेंज लाना ज़रूरी है. यू कुड हैव स्टिक टू योर थिंग ओनली, बट देन यू ऑल्सो वॉन्टेड कि एक शिफ्ट आना चाहिए कि डांस पीसेस हो रहे हैं, कोई क्रिएटिव प्रोडक्शन जा रहा है ऑन स्टेज, वो कैसा दिख रहा है ये भी समझा पाना किसी को अपने आप में बहुत बड़ी बात है. दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर. अगर एक डांसर को काम मिल रहा है तो वो डांस कंटिन्यू कर रहा है. मेरे क्लाइंट की लाइफ पड़ रही है टू बाय माई प्रोडक्ट. मैं नहीं कह रही, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट, that that person will dance for longer. More people will see and think that can be a profession. And then you'll multiply more and more dancers. I mean, there are so many people working on that right now to just give the idea to the Indian mindset that this is a viable profession. Now, उसके लिए तुम्हें performances मिलना बहुत ज़रूरी है. There's only so much that your classes are gonna get. You would realize that if you're teaching, how much you earn in a month, you can earn in one performance. True. One professional performance. True. So that is very important. अब अगर visual appeal नहीं होगी उस performance में तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा. Now companies are ready to pay, like a MNC is ready to pay 10 lakhs for a show. तो वहाँ पे तुम काली गंजी और लेगिंग्स पहन के नहीं जा सकते. बिल्कुल. If you want a project that big. Sorry, मेरे को काली गंजी और लेगिंग्स से ना कुछ थोड़ा हेट्रेड है. काफी आप सही बोल रहे हो. ये बहुत लंबे टाइम चला और लंबे टाइम चला ही नहीं, ये आज भी है, एग्जिस्टिंग है. आई हैव सीन इट. जैसे कुछ आता है कि आपको ओके इस टाइप का परफॉर्मेंस करना है, एंड स्पेशली कंटेम्प्रेरी के नाम पे तो समहाउ इट इज ब्लैक एंड ब्लैक ओनली. और अगर तुम बहुत एडवांस कंटेम्प्रेरी पीस कर रहे हो तो काली गंजी और शॉर्ट्स. हाँ, मतलब वो लेगिंग से शॉर्ट्स हो जाते हैं, बट वो वहीं पे अटका हुआ था बहुत सालों तक. सो तुम वो नहीं कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू टेक योर प्रोफेशन टू बी टेकन सीरियसली एंड अर्न अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी, then buy my clothes.
you know. तो that knowledge, वो laps जहाँ पे मुझे लगा I can fill that gap, I thought that I should try. Yeah, you put in that effort. Yeah. That Much effort needed. is required for Yes. our community Yes. survival, not just my company's Yes. survival. That effort is required. If you're not scaling, if you're not stepping up our professional game, and that does not mean teaching. Of course, teaching is extremely important. उसके आगे पीछे तो कुछ कर ही नहीं सकते. If you're not producing good dancers आगे, but if you're not stepping up in other ways also professionally, then we'll keep on diminishing, na. Right. So Right. yeah, it's about community का survival also. तो इसमें ये Nice. छोटा सा है part कि आप प्लीज कॉस्ट्यूम्स को सीरियसली लेना आपका चाहिए. आपका सेम Please ले लो, सच बात है. आपका सेम प्रोडक्ट सेम पीस आप लाखों में महंगा बेच सकते हो. सेम पीस if your costume is more dramatic, if your costume is more appropriate, however the client wants it to be, you can sell the same piece for a higher amount. But true. So true. So it should be taken seriously, huh? Please. हाँ प्लीज एक्चुअली हम भुगत भोगी हैं सो आई वुड हाँ, आल्सो and I promise you पैसे ज़्यादा नहीं लगते. 4 दिन पहले अगर सोचोगे तो सरोजनी वाला भी जो हैगल कर रहा है तुमसे, उसको भी पता है तुम डेस्परेट हो, हाँ, वो true. तुम्हें भी वो भी तुम्हें डिस्काउंट नहीं देगा. एंड एक्चुअली वो दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ भी नहीं है. अब आप ऐसी सिचुएशन में लैंड करोगे 4 दिन में चाहिए आपको, तो यू विल टेक वट एवर इज अवेलेबल. अच्छा, इस मामले में भी समथिंग वेरी कूल हैज हैपेंड, और ये मेरे को नहीं पता था होगा. ये टारगेट नहीं था. टारगेट था अच्छा प्रोडक्ट बनाना. सेम पीसेस आर यूज्ड फॉर 7-8 साल. तो अगर मुझे 10 साल हो गया बनाते हुए, तो 7-8 साल तो मैं गारंटी दे सकती हूँ सेम कॉस्ट्यूम्स हैव बीन यूज्ड. नॉट जस्ट द लियोटार्ड, स्टेज कॉस्ट्यूम्स. वी हैड डन गार्गी कॉलेज के लिए कॉस्ट्यूम्स 10 years ago, 9 years ago, one of our first costume projects. उन लोगों ने कोविड में, जब उन्हें पता था वो नहीं कर सकते, when their shows were not happening, so immediately फिर खुल गया and they're like, okay, show है. They wore the same costumes from 2014, 15 and in 2022. So and the same thing goes for abhi. There is this another company. I don't know if I'm supposed to name companies or not. That's totally up to you. हाँ, there is another company, Grid Tanisha's company, doing excellent work. Their show, they wore jackets that they got made from us 2 years ago. So you're also building your repertoire of not just your pieces, you're building a repertoire of your costumes also. Yes. Every company that we've worked with for 4-5 years end up giving some space in their studio just to keep costumes. Then we'll use it again and again. तो ये ऐसा नहीं है that again you're spending on just one show. This will be used again because So true. because कॉस्ट्यूम्स तो लॉन्ग लास्टिंग Quality होती we है. try to क्वालिटी give. अगर अच्छा होता है तो we try to give good quality. So that also works. नाइस. ऐसे इतने में इतना एच मिलेगा वाला एटीट्यूड नहीं है हमारा. हम आपको अच्छे से कॉस्ट्यूम बना के देंगे जो आप बहुत साल पहन सकते हैं. Hi Smita, Hi. welcome to TAP. Thank you. So I would like to share one story. हाँ. तो बेसिकली छाव में क्या होता है ना, क्योंकि वी डू यूरोपियन छाव एंड कंटेम्प्रेरी, तो बेसिकली छाव में क्या होता है ना, देयर इज नो कॉस्ट्यूम एज सच. Yeah. हमको क्या है, हमको पहननी है धोती एंड दैट्स ऑल. एंड कॉस्ट्यूम है वो. सिर्फ वो कॉस्ट्यूम है. हाँ. एंड इन कंपैरिजन टू अदर क्लासिकल डांस फॉर्म्स, क्योंकि क्या होता है ना, भरतनाट्यम इज वेरी स्टाइलाइज्ड. Yeah. बहुत ज्वेलरी, एक्सेसरीज, ओडिसी में भी सेम है, कथक में भी सेम है. आप बहुत ब्यूटीफाई करते हो अपने आप को, एक एक डिटेल्स पे काम. झुमके कैसे हैं, मांग टीका कैसा है, आपके चोकर्स, नेकलेस, आपकी अंगूठियाँ, कड़े, there's a lot बेल्ट, going on. एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. उसके बाद जब आप छाव करते हो, इट्स लाइक धोती, दैट्स इट. Yeah. तो मेरे को भी ये बड़ा अजीब लगा. मैंने कहा यार तो बहुत गरीब लग रहे हैं. मतलब इन कंपैरिजन टू समबडी हु इज डूइंग क्लासिकल, और आप क्लासिकल के साथ इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो. हम मेकअप भी कुछ इतना एग्जैजरेटेड नहीं करते कि भैया, हम तो मेकअप भी ऐसे करते हैं कि यहाँ का कलर अलग है, यहाँ का अलग है. यू कैन सी अ डिफरेंट स्किन टोन ऊपर नीचे से. सो देन वी स्टार्टेड यूजिंग बॉडी सूट्स एज आर कॉस्ट्यूम्स. के एक बॉडी सूट बनवाएंगे विद फुल डेकोरेशन एंड ऑल, और अच्छी सी धोती विद अ फैन. और हमारे में ऐसा फैन का भी कुछ नहीं है कि आपको फ्रंट चाहिए या साइड चाहिए या. सो वी इम्प्रोवाइज अलॉट विद फैंस ऑल्सो. हमारे एक फ़ैन है जो सिर्फ साइड में है, फ्रंट है ही नहीं. अच्छा. और तो हम एक शो कर रहे थे. देयर वाज अ क्रिटिक जो शो में आई हुई थी, एंड सब थोड़े से ऐसे थे कि यार
वो आ रही हैं, हम सब को ऑथेंटिक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एंड जो ऑर्गेनाइजर था वो हमारे पास आया, वो कहते हैं यार यार तुम तो ये तो ऑथेंटिक नहीं है। हाँ. मैं कहा तो ऑथेंटिक क्या है? हम्म. कहते वो धोती है और ये है वो है। मैं कहा तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, थोड़ा सा इवॉल्व होना चाहिए विद टाइम। सारे क्लासिकल डांस फॉर्म इवॉल्व हुए हैं, अब थोड़ा सा तो आप अच्छे लगो। एंड दे वर लाइक नहीं 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 अच्छा ठीक है चलो क्या करे क्या ना करे, आप ये कर दो, ये हटा दो, वो कर दो। मैं कहा यू हैव फेथ, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, इतना हमको हमारे आर्ट पे भरोसा है। एंड द क्रिटिक केम टू अस एंड शी सेड पहली बार छाओ आर्टिस्ट गरीब नहीं लग रहे। एंड दिस वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वी कैन हैव, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो उसके लिए। मतलब आपने सोचा नहीं, कुछ नहीं किया, आप जो चला आ रहा है वो चला ही आ रहा है, बस वो धोती है और आपने पहन लिया। मतलब दिस इज़ द बिग टाइम फॉर एटलीस्ट पीपल डांसर्स जिनके पास एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम अटायर नहीं है, तो एक्चुअली थिंक, एक्चुअली कोलैबोरेट, एक्चुअली टॉक टू पीपल हु आर कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के भाई हम क्या कर सकते हैं। दैट्स वन थिंग आई फील कि ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड I really want to tell everybody that please people around you are very open, please go and contact, please collaborate। and जैसे productions के लिए लोग करते हैं, productions में एक certain but general pieces also I would say कि इसमें ये होना चाहिए। so that's the story that I wanted to share के चलो thankfully थोड़ा सा गरीबी से उठे हैं हम performances में। कितने जैसे आपने बोला है एवोल्यूशन होना चाहिए, तो चैलेंज करोगे तभी तो पता चलेगा Exactly। कि किसी क्लासिकल आर्टिस्ट को हो सकता है वो भी बेचारी क्लासिकल आर्टिस्ट इतने सालों से सोच रही हो कि हम लोग गरीब क्यों लग रहे हैं सारे। Of course किसी ने सोचा होगा, I'm sure किसी ने सोचा होगा कि ये बहुत गरीब लग रहा है, अब आपने let's बोला do है तो मुझे भी something। लग रहा है गरीब ही लगते थे। एंड ये ब्लैक वाला तो बहुत आई वुड लाइक टू आस्क कि ये ब्लैक वाले बहुत सवाल आपके पास आते होंगे। हाँ। सो जस्ट फॉर अ नॉलेज टू एवरीबडी, what according to you are the best combinations on stage, color combinations, and best combinations for shoot? अच्छा, अब ना दिस आई एम ग्लैड यू आस्क्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्टेज एंड शूट, बिकॉज अलग है दोनों। हाँ, of course। The weirdest combinations look good on stage. Once I did a combination of hot pink and navy blue for a Latin piece. अजीब सा है, it doesn't work for a shoot, but it works really well on stage. Of course आपके piece पे depend करता है कि what is the mood of the piece, but high contrast looks good on stage. Shading one color going into the other looks good on stage. एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, your skin is a color. उसको आप एक कलर की तरह ट्रीट करिए कि अगर आपने एक mesh का फैब्रिक डाला है तो वो एक सेकंड कलर है। स्टेज पे वो तीनों चीज़ें अलग अलग, अगर आपका एक ब्लैक चलो कॉस्ट्यूम है जिसमें ब्लैक कॉस्ट्यूम है, ब्लैक मैश है और आपका स्किन भी दिख रहा है, तो वो तीन अलग अलग कलर हैं। आप ये मत समझो आपने काला कॉस्ट्यूम पहना। तो स्टेज पे कलर्स भी लाइट अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली योर लाइटिंग इज नॉट टू स्पेसिफिक। अलग अलग एरियाज में लाइट इज गोइंग टू मेक द कॉस्ट्यूम लुक डिफरेंट, इट्स नॉट इवन ना थ्रू आउट। तो बहुत ही मोनोटोन्स भी बहुत अच्छे लग सकते हैं इसी तरीके से अगर यूज़ करें कि ब्लैक को हमने 3-4 अलग अलग शेड्स में शेड इंटेंसिटी से यूज़ कर लिया, कहीं पे ट्रांसपेरेंट है कहीं पे ओपेक है, दैट ऑल्सो लुक्स रियली गुड। अगर काला ही पहनाना है तो प्लीज़ थोड़ा उसके अंदर भी बहुत क्रिएटिव हो सकते हो आप। लुक्स नाइस एंड इंटेंस कलर कॉम्बिनेशंस लुक रियली गुड, जो आप सोचोगे भी नहीं। ऑरेंज विद सी ग्रीन लुक्स नाइस, that we just did a contemporary costume. Inspiration was tulip flower. Okay. That your ballet piece flowers. अब जब मैंने पिच ही करा था कलर, the choreographer was like ये गोविंदा नहीं लगेंगे स्टेज पे, but it looked fantastic. So stage पे is where you can actually challenge कि क्या कर सकते हो, अजीबोगरीब चीज़ें कर सकते हो स्टेज पे। Coming to a shoot, whatever is in trend, sadly this is how what we are moving towards. Whatever is working right now. Abhi currently nudes are working a lot, so different shade of nudes have been working very well on stage, in shoots. तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, बट वट एवर इज वर्किंग राइट नाउ, आपका माइंड भी उसी हिसाब से ट्यून हो जाता है टू थिंक ओके दिस लुक्स नाइस, राइट। सो करंटली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. Otherwise red black looks really nice. Anything high contrast always looks good in stage or in shoots. If your costume is single color, then the background being high contrast looks nice. So that works
बट जितने एक्सपेरिमेंट करना है स्टेज पे करो. थिंक ऑफ द weirdest combinations and if the lighting is in your favor, जो होनी चाहिए, the costume designer should be in touch with the lighting designer as well. Of course. तो it can really work. और हाँ, ये देखो दैट देयर इज़ अनदर हैबिट कि अगर डार्क और इंटेंस पीस है या फिर अगर टेक्निकली साउंड तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे डांसर्स और तुम्हारी बहुत टेक्निक बड़ी अच्छी है तुम्हारी, तो तुम अंधेरा कर देते हो स्टेज पे. तुम्हारे नेवी ब्लू या ब्लैक कॉस्ट्यूम्स होते हैं और स्टेज पे अंधेरा होता है, नहीं दिखता. मुझे नहीं पता कौन बताएगा तुमको, बट नहीं दिखता. ऑडियंस कैन नॉट सी इट. सो योर डांसर्स हैव टू पॉप एंड दैट डज नॉट मीन कि आप डार्क की जगह उसमें फ्यूशिया ग्रीन के कॉस्ट्यूम्स डाल दो या फ्यूशिया पिंक कॉस्ट्यूम्स डाल दो. इवन ऑन अ डल बैकग्राउंड द डांसर हैज टू शो, देयर लाइन्स हैव टू शो, देयर सिलुएट हैज टू शो. आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? राइट. कि जब गुम हो जाते हैं डांसर्स ऑन स्टेज. हाँ, वो बहुत होता है. वो नहीं होना चाहिए. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पीस, द कलर्स डिपेंड ऑन योर पीस, बट the visibility of your dancer is the most important. और कहाँ पे आप चाहते हो डांसर गुम हो जाए बैकग्राउंड में, वो भी बड़ा थॉट सॉट आफ्टर होना चाहिए. थॉट दैट नाउ आई वांट द डांसर टू काइंड ऑफ जस्ट वैनिश, हैज टू बी डिसाइडेड. नॉट नहीं दिखेंगे कोई बात नहीं, इंटेंस लगेगा वो नहीं. तो वो तो खैर ये बात है कि पीपल आर नॉट रेडी टू इवन कोलैबोरेट विद राइट डिजाइनर्स फॉर दैट मैटर. दे जस्ट थॉट कि अच्छा कोई आएगा एंड कोई ऑपरेट कर देगा और प्रकाश डाल देगा और लाइट जल जाएगी. इट्स लाइक अ ट्यूबलाइट जल गई, डांस दिख रहा है एंड बंद हो गया. फॉर मेजर ऑफ देम इट्स लाइक दैट कि क्या है, लाइट ऑन ही तो करनी है, लाइट ऑन हो जाएगी. और कॉस्ट्यूम पे तो वो बाद में ही आएंगे. कॉस्ट्यूम तो बहुत लेटर एस्पेक्ट हो गया. कॉस्ट्यूम तो बिल्कुल लास्ट में से आ जाएंगे. एग्जैक्टली 2 दिन पहले. कोई बात नहीं. सेम कलर की टी शर्ट ब्लैक और सेम पजामे आ जाएंगे सरोजनी से. S&M से आएंगे कॉस्ट्यूम्स, सरोजनी नगर मार्केट. या So you told कि आपका कॉस्ट्यूम नहीं अपना फोर्टे इज लियोटार्ड फॉर. कह सकते हैं. मैं अभी भी बिलीव करना चाहती हूँ वो है, बट अब स्टेज कॉस्ट्यूम्स पे जा रहा है वो फोर्टे धीरे धीरे करके. तो स्टेज कॉस्ट्यूम पे बहुत वियर्ड रिक्वेस्ट नहीं आती? क्योंकि स्टेज कॉस्ट्यूम एक जो चीज़ है ना, वो बहुत 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 वाइड एस्पेक्ट है. बहुत वाइड है. और क्योंकि हम सब कवर करते हैं. मेरी don't tell me you are also doing some sequence kind of a shimmy work as well. We do. बहुत डिमांड आती है. Bollywood shows continuous. Our continuous work is B2B कंपनीज के साथ जो बॉलीवुड शोज करती हैं. हमारे कॉस्ट्यूम्स ऐसा हो सकता है कि आप किसी बहुत ही फैंसी शादी पे जाओ और जो ब्राइड के पीछे पर लेके खड़ी होती है ना, वो उसका कॉस्ट्यूम भी हमने बनाया. ऐसा हो सकता है, काफी गुड चांसेस. तो So how this transition was from shimmer to leotard to shimmer for that matter? वो सब हो रहा है अभी भी. We make that also and we make that also. So don't you feel sad about that? No, अच्छे से करो ना. Sad क्यों? वो feather में the person doesn't have to look like an idiot ना. They can look very nice also. In fact हमें एक feedback आया था, this is so silly, कि जो जिस कंपनी ने, जो इवेंट डिज़ाइन कंपनी ने डांस कंपनी को हायर करा था, उनका फीडबैक आया कॉस्ट्यूम्स इतने अच्छे लग रहे थे कि वो गेस्ट लग रहे थे डांसर्स. तो तुम ज़्यादा अच्छे भी नहीं कर सकते ना. यू हैव टू मेक श्योर दैट दे लुक लाइक डांस कॉस्ट्यूम. दे कैन नॉट बी दैट फैंसी आल्सो. इसी से हमारा आया. हमारा पता है कब थोड़ा सा चेंज हुआ माइंडसेट. इसके पीछे भी स्टोरी है. वी वर डूइंग साध्या को ही प्रोजेक्ट मिला था एंड we were choreographing a ramp walk and it was for Sandeep Khosla and Abu Jani. Nice. And the costumes were specifically designed by Manish Malhotra. Yeah. And the fabric on the body felt like somebody giving a warm hug. Yeah. Trust me on this. It was just amazing, mind blowing. हमको लगा कि यार ये हमारी रेगुलर कॉस्ट्यूम ऐसे क्यों नहीं है. होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. And you have said this right के बहुत लॉन्ग लास्टिंग कॉस्ट्यूम होती है. हमारा एक प्रोडक्शन है, सादा का प्रोडक्शन है, गेम ऑफ डाइस, और इट प्रीमियर्ड इन 2004. और मुझे लगता नहीं कि उसके बाद से लेकर अब तक कॉस्ट्यूम्स बनी है. आई एम सॉरी सर, हो सकता है आपने बनवाई है पर हमको नहीं तो नहीं पता, क्योंकि तो कॉस्ट्यूम्स का जो नाम लिखा हुआ है वो हमारे सुपर सीनियर्स का लिखा हुआ है. लाइक यू कैन सी तुषार रिटन ओवर द कॉस्ट्यूम. तुषार, करण, अतुल. यस. हाँ, कॉस्ट्यूम थोड़ी है वो, तो टी-शर्ट्स. नहीं, कॉस्ट्यूम्स. अच्छा. एंड इट स्टिल फील्स अमेजिंग.
क्योंकि पता है पता चल रहा है Who made those उसको हरिंदर। अच्छा, नाइस नाइस। हाँ, तो अभी भी वो कॉस्ट्यूम पहनते हो ना, इट Yeah. फील्स अमेजिंग। और उस Yeah. टाइम पे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट हुआ होगा कॉस्ट्यूम्स पे। हाँ नहीं तो बट निकल गया ना, अगर बहुत उसमें निकल 5 गया। शोज भी हो गए तो आई एम वैल्यू टॉकिंग निकली अबाउट ना, मोर देन 250 shows तो वैल्यू over- निकली ना उस कॉस्ट्यूम over 21 years. से। Yeah. So please guys invest in good costumes. That's what we gonna say to you. Exactly. तो वो बहुत अच्छा फील होता है, आपको अच्छा फील होगा पहनने के बाद, आपको लगेगा कि हाँ कुछ बहुत कंफर्टेबल पहन रखा है। अनकंफर्ट मैटर्स द मोस्ट व्हाइल यू आर डांसिंग। या गेटिंग इनटू कैरेक्टर, या कभी कभी कंफर्ट को गिव अप करना पड़ता है उसके लिए। एक चीज़ और हुई थी। So there was a studio in Pitampura who was kind of sponsoring our costumes और उसको कोई आइडिया नहीं है। he's a bridal designer. हाँ उसको कोई आइडिया नहीं है, उसका नई दुकान खुली थी, उसको लगा कि मैं कर दूंगा। एंड आई वॉज डूइंग अ शो, उसमें मुझे कुछ लिफ्ट्स वगैरह एक्रो स्टफ करना था, और उसने मुझे बहुत टाइट पैंट दे दी। और मैंने उनको बोला, मैं कहा मैं नहीं पहन पाऊंगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं नहीं पहन पाऊंगा। एंड द ऑर्गेनाइजर्स वर लाइक नहीं आपको पहनना पड़ेगा, आपको पहनना पड़ेगा, आप स्पॉन्सर हुआ है, वो बैठे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं पहन लूँगा, रेस्ट योर, अप टू यू, जो भी होगा। एंड यू बिलीव मी, वो पैंट ना मेरी यहाँ से खुली है, ऐसे उसके बक्कल वक्कल सब उड़े हैं, वाइड ओपन। आई वॉज लाइंग डाउन, वो लिफ्ट हो रही थी पैरों के ऊपर, एंड इट वेंट ऐसे, और मैं बिल्कुल ऐसे उठाऊँ आराम से प्यार से, मैंने पार्टनर को पकड़ा और मैं एग्जिट। एंड आई डिडंट परफॉर्म द पीस। मेरे पास थी स्पेयर में कॉस्ट्यूम, पर मैंने नहीं पहनी, जस्ट टू मेक देम रियलाइज कि आपने ये गलत किया, आपने एक डिस्कम्फर्ट में डाला किसी आर्टिस्ट को, यू शुड नॉट डू दिस। और मेरे को तो ये फील होता है कि कॉस्ट्यूम जितनी सिंगल पीस में हो उतनी बढ़िया है। आई हैव डन शोज फॉर पीपल जिसमें होता है क्या ये है, उसके ऊपर कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है। तो पीस पे और कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रही मैं सिंगल पीस में बनाती हूँ सारे कॉस्ट्यूम्स, मोस्टली होते हैं। तो सिंगल पीस में बनाना हमारी लिए ठीक है, डन। मुझे लगता है जितने ज्यादा एड ऑन्स होते हैं ना, उतना मेरे फंसते हैं पैर। या हाँ, सो तो वो भी यू हैव टू टेक केयर ना। अगर आप एरियल सिल्क के लिए अगर कॉस्ट्यूम कर रहे हो, सो यू हैव टू नो कि आप कट कहाँ पे दे सकते हो, कौन सा वाला पार्ट वो यूज करते हैं। लाइक यू नो दैट यू कांट गिव एनी एम्बेलिशमेंट्स, जैसे आप वो सीक्वेंस कह रहे थे ना, यू कांट गिव अंडर द नी नहीं दे सकते, एंकल पे नहीं दे सकते, लोअर बैक पे नहीं दे सकते, बिकॉज दैट इज वो अब्रेजन होगा, डांसर को इंजर करेगा और कॉस्ट्यूम भी खराब होगा। तो पता भी होना चाहिए। तो अगर किसी ने आपको ऐसे पैर में आने वाला कॉस्ट्यूम दिया है तो फिर उसकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है बिल्कुल भी, आपकी पैंट फट गई। या बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही नॉलेज भी इम्पार्ट करना व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद और कोलैबोरेटिंग विद एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। वो एक सही चीज़ बताना भी, एंड आई एम श्योर पीडिया इज डूइंग दैट। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट sort of a ganji that you sent us, the crop top for girls and ganjis for boys for World Dance Day. For World Dance Day, right? And it was amazing. I still have it. And really? Yes. That was yes, like what, 8 years ago, 7 years ago. हाँ, है ना? इतना ही 7-8 years ago. So you still have it? Yes. In good condition? Good condition. Yeah, देखा? Good condition. The print is still there. Yeah. वो ऐसा भी नहीं है कि वो फट गया या कुछ हो गया. वो the print is still there. The color is still the same. I would say it Perfect. was. That's good to know. Yeah, it still feels so good. मेरे हिसाब से पहनने this के is बाद. what sustainability means. Exactly. कि you know the pieces lasted that long. Yes. Good, I'm glad. फिर से बनवाओ, इसका मतलब ये थोड़ी अच्छा प्रोडक्ट मैंने बनाया तो आप बनवाओगे नहीं हम इस बार अपनी कॉस्ट्यूम बनवाएंगे आपसे फॉर श्योर। वी आर स्ट्रगलिंग फॉर अ गुड कंटेम्परेरी कॉस्ट्यूम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। Oh, that is, अगर मेरे से फोटे पूछोगे तो that's the forte. Yeah, definitely. Contemporary costumes, I feel very confident about. और कोई प्रोजेक्ट आता है contemporary का और मैं उतनी excited भी हूँ। नहीं बिल्कुल we wanted something for contemporary only. Yeah. और क्योंकि जैसे स्वाति को तो पता था कि आप कॉस्ट्यूम्स करते हो, मुझे नहीं पता था। I still मुझे लगता था कि you are again for the rehearsals and all the classes, क्योंकि I am still struggling for a good lower to dance on. क्योंकि कर रहे हैं और मेंस वेयर पे मैं हाँ प्लीज हम लड़कों को तो निगलेक्ट कर देते हैं, लड़के क्या करेंगे, तुम टी शर्ट ही पहनो। तो आपके जैसे तो लड़के होते हैं, मुझे सिंगल कॉस्ट्यूम दे दो। तो हमें लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शायद पता नहीं रिटर्न देगी। देखो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट तो लड़कों का ये है कि एक बार आपने लड़कों की कॉस्ट्यूम बना दी मतलब बना दी। अब वो चेंज नहीं होगी, वो पहन लेंगे, वो एक रेजर एक वॉलेट जिंदगी भर
चल जाएगा, जैसे वो Yeah. होता है ना वो वॉलेट पे जबरदस्ती चेंज होता है सबका वो। अब आप समझे क्यों नहीं बनाते हम लड़कों के कॉस्ट्यूम ज्यादा? प्लीज बनाओ, हम तो वही रह गए काली गंजी में, हाँ लड़कियों का लेआउट आ गया, अलाउड नहीं है। क्योंकि अभी भी मेरे को मतलब सीरियसली बताऊं, अच्छा आई कांट वेयर दैट टाइट्स Yeah. रिहर्सल पे, हाँ क्योंकि नहीं तो वो बैले डांसर्स या आज हाँ. अब पोल और सिल्क डांसर्स के लिए है वो, तो अब कंटेम्प्रेरी और चाउ डांसर्स के लिए नहीं है, अब गरीब गरीब अब मुझे चाहिए कुछ ऐसा खुला कि वो जो कूल ब्रॉडवे लोग हाँ मतलब एक्सटेंशंस, मतलब मुझे अच्छा फील हो। वी आर वर्किंग ऑन दैट। प्लीज हाँ आ जाएगा बहुत सून। प्लीज, क्योंकि मैंने सब ब्रांड ट्राई कर लिया, ईच एंड एवरी ब्रांड आई हैव ट्राइड, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लिटरली अब निकरों में करने लगा हूँ, हाँ क्योंकि और कुछ मेरे को बचा ही नहीं है। एक वही है, मैं कुछ टाइम बाद मतलब लुंगी में आ जाऊंगा। नहीं हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको मिलेगा अच्छा सा एक कूल लोअर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको टेस्ट करना है तो मैं पे टेस्ट भी कर तो सकता हूँ। फटेगा भी नहीं। कोई टेस्ट करना है तो टेस्ट हाँ लिफ्ट विफ्ट करके अच्छे से आप टेस्ट कर देना। पक्का हाँ। पक्का कुछ फट तो नहीं रहा कहीं से। क्योंकि नहीं है लड़कों हाँ. के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ इट्स लेसर, आई एग्री, वी हैव वर्कड मोर ऑन वुमेन्स, Yeah. नॉट इन कॉस्ट्यूम्स दो, कॉस्ट्यूम्स वी डू फॉर मेन। कॉस्ट्यूम्स तो कैन बी वर्कड आउट, बट यार रिहर्सल अटायर फॉर बॉयज या वी आर वर्किंग ऑन इट। हम तो वही पहन के आते हैं, वही पहन के चले जाते हैं। हाँ. कोई अलग भी नहीं है हमारा, तो वही मेट्रो में पहन के आए, वही चले गए पहन के, एक ही है हमारा। सो या प्लीज डू दैट। हाँ डन। सो नो एज सच फोटे इन कॉस्ट्यूम्स, हाँ कंटेम्प्रेरी आई वुड से। कंटेम्प्रेरी। वो इसलिए भी बिकॉज ये तो और कोई भी नहीं करता, बाकी तो अभी बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ करके लोग कहीं ना कहीं से किसी इधर टेलर से उधर टेलर से करवा लेते हैं। कंटेम्प्रेरी पीस कोई नहीं बनाता, और अगर बनाता भी है तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई कैन से कॉन्फिडेंटली हमारे जैसे नहीं बनाता। वी कस्टमाइज टू साइज। अगर आप देखो अ लॉट ऑफ पीपल ना डांसर्स आर कभी ऊपर से स्मॉल नीचे से लार्ज होता है ऐसे, बिल्कुल। कोई कस्टमाइज नहीं करता। वी कस्टमाइज टू साइज। So for contemporary costumes, I am always very excited and very confident कि ये हो जाएगा और आप जो कह रहे हो आपको उससे बेटर मिलेगा। That वेरी नाइस, श्योरली बहुत श्योर हैं हम उसके लिए। आई एम श्योर। हाँ So what was your breakthrough project, you would say? breakthrough project Are you still waiting for that one breakthrough? नहीं, हर बार project? आता है, I get equally excited, but the first financially breakthrough या opportunity breakthrough। नहीं, जिनको आपको ऐसे एक वो होता है ना फाइनेंशियली, तो इट्स फाइन, मतलब आपको लगना हाँ. चाहिए कि यार आज ये करके ना मुझे मजा आया, कि दिस आई वांटेड Yeah. कि जिसमें आपके रातों की नींद उड़ गई हो, दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट के यार। मैं तो सारे प्रोजेक्ट्स में ही उड़ती रहती है। वी डिड दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रोजेक्ट नहीं है ये एक पूरा सीजन है। अच्छा। अब तकरीबन अबाउट 40 to 48 कॉलेजेस हैं जो हर साल compete करते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, ये मूड इंडिगो टाइप जो फेस्टिवल्स होते हैं, वेरी रेप्यूटेड फेस्टिवल्स। दैट ईयर विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months वी डिड 18 कॉलेज के कॉस्ट्यूम्स एंड नन ऑफ देम न्यू कि वो बहुत सीक्रेटिव है, बिकॉज अगर किसी का भी कॉस्ट्यूम सिमिलर हो गया, Exactly, तो देयर आर पॉइंट्स इन कॉस्ट्यूम्स एंड दे आर ऑल वेरी कंपेटिटिव, दिस यंग ब्लड, ओहो उतनी जान तो जिसमें और किसी में नहीं होती। We did 18 colleges that year. That was नींद उड़ना सब कुछ, and that there when they all came together and then जब shows हो जाते हैं ना और उनकी 40-50 परफॉर्मेंसेज होती हैं एक अच्छे कॉलेज की, और जब टुवर्ड्स द एंड जब उन्हें लगता है सिक्योर हो गया अब तो ठीक है, अब क्या कोई कॉस्ट्यूम सेम हमारा कॉपी कराएगा, तो देन दे स्टार्ट शेयरिंग विद ईच अदर, ओके दिस इज वेयर दे गॉट देयर कॉस्ट्यूम्स डन फ्रॉम, एंड दे वुड मैसेज मी लाइक अगेन एंड अगेन दैट यू डिड दिस कॉलेज आल्सो, अच्छा आपने उस कॉलेज का भी किया था, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अब वी हैव अराइव्ड, बिकॉज दीज आर द पीपल जो आगे जाके प्रोफेशनल डांसर्स बनेंगे। Exactly. और वो अभी भी क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, who now they have, some of them have their school, some of them are actors, yeah, you see them in TV series, you see them in movies, and then they still know us from there and they have a good relationship. That was, I think that season was a breakthrough season for the company, that अगर these guys were so passionate, वो जितना काम करते हैं अपने कॉस्ट्यूम्स पे हर एक चीज़ पे, मैं बता रही हूँ प्रोफेशनल लेवल पे, अब उनकी मेच्योरिटी लेवल इज़ डिफरेंट, तो वो जो प्रोडक्शन क्रिएट होती है और उनका बजट बहुत कम होता है, तो वो शायद प्रोफेशनल ना हो, बिकॉज दे आर स्टिल लर्निंग, या 17-18 साल के बच्चे,
But that was a breakthrough season. That was the most fun. तो ऐसा नहीं हुआ कि जो एक रिक्वेस्ट किसी कॉलेज से आई दूसरे से भी वही आ गई और लाइक शिट यार ये तो यहाँ से आ गया है होता है and we would हाँ so this is a policy because industry बहुत छोटी है. ये मैंने शुरू से रखा हुआ है कि अगर कहीं और से काम आया है and similar इंडस्ट्री का लैटिन में अब ये बहुत होता है कि सिमिलर कॉस्ट्यूम बन रहा है, सो आई से सी वी हैव मेड समथिंग वेरी सिमिलर फॉर समबडी एल्स, लेट्स वर्क ऑन समथिंग एल्स, लेट्स डिजाइन समथिंग अ लिटिल डिफरेंट टुगेदर. तो हम लोग नहीं देते हैं वो कॉस्ट्यूम, व्हिच इज गुड क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिटी, सबका एक यूनिक कॉस्ट्यूम होना बहुत जरूरी है. अगर कोई मुझे लैटिन एंड लैटिन कॉस्ट्यूम्स गो फॉर 15,000 आल्सो, व्हिच इज वेरी ओके फॉर देम, क्योंकि वो जब वो बाहर से मंगवाते हैं उन्हें 25,000 का पड़ता है. सो इफ दे पे मी दे आर हैप्पी दैट हमें डिसेंट अमाउंट में मिल गया. वो बाहर से आया कॉस्ट्यूम फिर भी सेम हो सकता है ऑन स्टेज, बट इफ यू गॉटन थ्रू PDA देन यू नो दैट स्मिता इज पर्सनली वांट टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट यू इन अ स्पेसिफिक फेस्टिवल सेम कॉस्ट्यूम किसी का नहीं हो सकता. इवन इफ वी हैव मल्टीपल पीपल फ्रॉम द सेम फेस्टिवल कमिंग टू अस, जो टचवुड अब होता है, nobody's costume is the same and it's far from it. Like I make sure they're all very unique in their own way. और वो लोग मान भी जाते हैं, पूछते भी हैं और किसका वो भी नहीं बताते हैं, वो भी नहीं बता सकते. थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए because I don't want them to go somewhere else, and then I get in touch with that person also कि listen, somebody had come to me, I said no, now if they get it made from somewhere else that's not on me. तो वो अब बट मेरे को बड़े मजे आते हैं अगर मैंने मना कर दिया और उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम कहीं और से बनवा लिया, तो मेरा वाला कॉस्ट्यूम जो PDA ने बनाया और जो किसी और ने बनाया उसमें कंपैरिजन हो जाता है और बड़े मजे आ जाते हैं क्योंकि वो महंगा ही होता है ज्यादा, जो कहीं और से बनवाया और बेटर भी नहीं होता होगा आई एम श्योर. तो वो दोनों क्लाइंट फिर मेरे पक्के हो जाते हैं फॉरएवर. ये भी अच्छी बात है. तो वो अच्छा ही होता है. हाँ, उनके लिए नहीं होता अच्छा, मेरे लिए अच्छा होता है. नहीं बिल्कुल देखो अच्छी चीजों के लिए सब अच्छा ही होता है. नाइस. सो स्मिता, कमिंग बैक टू, अभी हमने काफ़ी सारी फन बातें करी, काफ़ी कुछ पता चला, एंड नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द ग्रे एरिया इन योर फील्ड? ग्रे एरिया मतलब ऐसे स्मगलिंग टाइप ग्रे एरिया? नहीं स्मगलिंग नहीं, लेकिन जो आपके हिसाब से आपको लगता है कि अगर ये चीज़ नहीं होती है इस तरह से बेटर हो सकता था, या फिर यहाँ पे किसी एक टाइप की मोनोपोली है या ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग टू डू विद द सिस्टम दैट यू फील इज नॉट करेक्ट, मे बी. यार वन ऑफ द कूल थिंग्स अबाउट बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, सिस्टम थोड़ा बहुत PDA नहीं बनाया है, तो अब किसी और को लगेगा तो ग्रे लगेगा, बट उनको लगेगी तुम्हारी मोनोपोली. मैं तो चाहती हूँ लगे, बहुत अच्छी बात है. इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग इन द सेम इंडस्ट्री प्लीज गेट इन टच, हो सकता है हम कुछ कोलैबोरेशन में कर लें. ग्रे एरिया मुझे एज अ कम्युनिटी का ही वही लग रहा है दैट वी नीड टू फोकस मोर ऑन मेकिंग श्योर दैट वी एग्जिस्ट लाइक एज द डांस कम्युनिटी. दैट आई नो अभी लग रहा है बहुत डांसर्स हैं आसपास, बट वी आर competing our space at an MNC with a comic, with a singer. Yes. So I would say we have to focus on live performances more. आपकी जो भी income है, जितनी भी है, try and go for a live performance. Encourage each other, share each other's content, especially if it's live, because the most amount of money, अगर आप you saw the Himesh Reshammiya concert, yes. उसने मूवी से नहीं बनाया होगा इतना पैसा, उन्होंने जितना अपने कॉन्सर्ट से क्रिएट करा है. आई नो वो लेवल अलग है, बट लाइव परफॉर्मेंसेज एंड इफ द ऑडियंस इज कमिंग इन एंड इफ यू कैन कीप ऑडियंसेस एंगेज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर काम नहीं हो रहा है, क्रिएटिंग शोज़ पे काम नहीं हो रहा है. जो शोज़ क्रिएट भी होते हैं वो रिसाइटल्स होती हैं मोस्टली, जिसमें पेरेंट्स आते हैं, तो उसका खर्चा उतने में ही चला जाता है. क्रिएट शोज़, क्रिएट लाइव परफॉर्मेंसेज एंड वॉच ईच अदर स्टफ, क्योंकि हम ही हैं एक दूसरे की ऑडियंस पहले, तो उसके बाद यू नो इंक्रीज होगा सर्कल. बट फॉर अस टू रियली मेक मनी एंड एग्जिस्ट हैप्पीली एज अ कम्युनिटी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम is let's like make more live material. Basically, that is completely stopped. coexist. Yes, so true.
मतलब the point कि we need to go out and see each other's show. We need Yeah. to see each other's live performances. Exactly. Yeah, because live performances are happening. It's not like that they are not happening. Thankfully, we do a lot of live shows, live performances. So thankfully, it has not gone from us as of now. Yeah. But post COVID, this shift of the audience is what even we have felt. Yeah. The audience is kind of not there. Yeah. जो ऑडिटोरियम्स पहले भरे रहते थे, मूव इन ऑडियंस भी होती Yeah. थी जिनकी, या फिर लोग एफर्ट डाल के आते थे, फ्रेंड्स एंड यू नो सिर्फ पब्लिसिटी बेसिस पे भी, अभी वो ऑडियंस Now थोड़ी this, कम हो गई है. this every industry is struggling. The cinema industry is struggling. तुम्हारा product has to be that impeccable कि जो scroll कर रहा है ना phone घर पे, Actually, वो छोड़ के आएगा. So the stakes are higher. So your product has to be that amazing कि पहले बड़े सारे छोटे छोटे थिएटर्स भी होते थे. One of the very fancy theaters is that Oddbird theater. वो भी बंद हो गया है. बंद हो गया. हाँ, वो फिर से शुरू हुआ, लेकिन फिर अभी Yeah, बंद हो गया है. हाँ, I'm not sure what their status is right now, but encouraging each other for live performances, create shows, get sponsors. अभी we were talking about अभी मैं श्री के साथ भी बात कर रही थी. Just ask, call up a company. I mean, कोक के पास इतना पैसा है, आपको पता भी नहीं है वो कितनी छोटी चीज़ें स्पॉन्सर्स करते हैं. You have no idea. अगर कोक अपनी नहीं करेगा तो थम्स अप, रिचार्ज, whatever that small branch, वो उसको दे देगा तुम्हारा प्रोजेक्ट. Make cold calls, get sponsors on board, get a bigger budget, get a better concept, hire us as costume designer and manufacturer, and create a good show. And this is for everybody. There should be enough live performances happening कि book my show पे you're selecting Right. कि क्या देखना है, which is not happening right now. तो वो मुझे लग रहा है that अगर हमने नहीं करा ना तो कहीं ना कहीं जाके you know हम flatline हो जाएंगे. True. Yeah. Because and also that's where the real money is. करो ना, Actually. एक शो बनाओ, उसको ट्रैवल करो, हर जगह लेके जाओ. बिल्कुल. Why not? बिल्कुल. Nice. मुझे तो याद ही नहीं है Very क्वेश्चन क्या thoughtful actually. Gray area. हाँ, point of ग्रे view. एरिया. हाँ, Yeah. हाँ. Nice. And any criticism that you would like to discuss about, you would like to share? And हाँ. what you have learned out of it, or what did you feel? Criticism Not about even myself? that. Yeah. अच्छा, about myself. About your work, About my- basically. हाँ, मैंने बताया तो काली गंजी टाइट्स. बस करो. मे पुट इन दी एफर्ट इन जितना आप एफर्ट कोरियोग्राफी और म्यूजिक में लगाते हो. Like have मेरे you हिसाब ever से तो उतना ही been एफर्ट लगाओ. criticized for your work? हाँ, left, right and center every day, 5 times at least. But then that's true for everybody. आपको भी मिलता होगा क्रिटिसिज्म, सबको मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल. And how do you take it? क्योंकि feedbacks are nice. Criticism सारा क्रिटिसिज्म फीडबैक ही है. पर कभी It's your state of mind that makes it Yeah. a criticism as opposed to a feedback. If you think there's truth to it, तो वो अच्छा feedback है. हाँ, If there's no exactly. truth to it, तो वो you just let it go. useless feedback है. But है feedback ही. कुछ criticism is just a negative receiving of हाँ, a feedback. मत करो ना negatively receive. If बस कौन सा Sorted. Yeah. स्मिता काफी sorted है, इससे हमें ये पता चलता है. नहीं हो which गई is हूँ very मैं nice. after 10 years of being in the industry that you can't take it to heart. It is Right. not personal. If somebody is attacking you personally also, please take the काम का चीज़ from it and give away the rest. No point. Nice. ऐसे celebrities बोलते हैं ना, आप मत पढ़िए आप negative comments. मत पढ़ो. It's मत okay. पढ़ो. नहीं सब पढ़ो but मत लो Don't ना. get affected by it. Don't get affected by it. Help it to use it to help create your product and your user experience better. Right. Okay. So finally coming to our end bit. Any food for thought or any life mantra that you would like to share with our audience? I think because this is coming to my head because we just spoke about criticism. Just be kind. I think that's my, maybe because I've just become a mother. Just be kind. You can argue with yourself or with somebody else that इस सिचुएशन में सच बोले या नहीं बोले, कि आपने फ्रेंड को क्रिटिसिज्म रियल दे या बोल दे हाँ अच्छा है, जो करना करो. एवरीथिंग इज ग्रे, एवरीथिंग इज डिबेटेबल. सच बोलना है, झूठ बोलना है. जस्ट बी काइंड.
That is never debatable. That, bas, be kind. And practice that. Kindness is also a learned skill. Yeah, it Practice is. kindness. It is, You'll it is. become. I'm also practicing. Nice. That's Okay. So thank you, Smita. Thank you so And we also have a small Coffee hamper. Yeah, not coffee hamper, but small token of. Thank you so much. I will. Yes. Thank you. That's really sweet, guys. Yay, and thank you for coming. Thank you so much. It was great. It was great chit chatting with you guys. Yeah,